پاکستان کی آبی سرحدیں ناقابل تسخیر بنانے کی جانب بڑا قدم۔ پاک بحریہ کا شمالی بحر عرب میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے داغا گیا۔ LY-80 میزائل کی رینج میں اضافے سے پاک بحریہ کی صلاحیتیں بڑھ گئیں۔ جدید ڈرونز کی بھی کامیاب آزمائش۔ USV کا انتہائی رفتار اور درست نیویگیشن کی صلاحیت کا مظاہرہ۔ کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی مضبوط فضائی دفاعی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ ISPR کا اعلامیہ۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں ٹارگٹ کیا تھا۔ سربراہ JJY مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مولانا سلطان کے قتل کی مذمت۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث 11 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں 6 ملک دشمنوں کا کام تمام۔ کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے 5 خوارج کو ٹھکانے لگایا۔ ہلاک دہشت گرد بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ گولہ بارود اور اسلحہ برآمد۔ ISPR کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فورسز کو شاباش۔ وزیر اعظم سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان کی ملاقات۔ صوبے کی سیاسی صورتحال اور مسائل پر تبادلہ خیال۔ وفد نے صوبائی حکومت کو ناکام قرار دیا۔ خیبر پختونخوا میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بر وقت تکمیل ترجیحات میں شامل۔ وفاقی حکومت اپنے دائرہ اختیار کے تحت ان مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو تانگا پارٹی قرار دے دیا۔ PTI سے نمٹنے کی پریکٹس ہو گئی۔ اڈیالہ کے باہر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی تو نمٹ لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں گفتگو۔ قرآن میں ریاست کے خلاف لڑنے والوں کے بارے میں واضح احکامات ہیں۔ میرا کام مذاکرات نہیں کچھ اور ہے، صحافی کو جواب۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے قومی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کر دی۔ فوج، عدلیہ اور اقتصادی ماہرین کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر رولز طے کرنے کی ضرورت پر زور۔ سربراہ محمود خان اچکزئی نے ملک بچانے کے لیے آئین کا تحفظ ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ ملک تباہ کرنے والی قوتیں اب آئین برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوامی مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹ چکا۔ عوام بھی قومی بحرانوں کے ذمہ دار ہیں۔ مصطفیٰ نواز کوکر کا ملک کی آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے پر زور۔ سندھ حکومت نے اب تک کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں دی، لیکن جلسہ ہر قیمت پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جام شوروں میں خطاب۔ پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم سے پاکستان کے آئین کا ڈھانچہ ہلا دیا۔ سندھ کی عوام اب پیپلز پارٹی کو مزید دیکھنا نہیں چاہتے، سہیل آفریدی کا دعویٰ۔ مسلم لیگ نون کا تحریک انصاف کو باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ گزشتہ روز کراچی کو 6 گھنٹے تک یرغمال بنایا گیا۔ سہیل آفریدی کی ریلی میں 500 سے زائد افراد نہیں تھے، ان میں بھی اکثریت افغان باشندوں کی تھی۔ راجہ خلیق انصاری کی پریس کانفرنس۔ سندھ حکومت کا صوبے میں PTI کی آئینی حدود میں کسی بھی سرگرمی کی مخالفت نہ کرنے کا اعلان۔ PTI کا مزاج جارحانہ ہے، انتہا پسندی، شدت پسندی اور بد کلامی سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے خبردار کر دیا، واضح کیا کہ PTI سے شدید اختلافات کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ان کے عہدے کے مطابق پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ مشورہ دیا کہ فروری جیسے احتجاجی کال سے کارکنان کو مشکلات میں مت ڈالیں۔
नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमा फवाद चौधरी ने कराची में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल को सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम करार दिया। बिलावल की सियासत में भुट्टो की सियासत नजर आई। फवाद चौधरी ने आगे बढ़ने के लिए सियासी जमातों का डायलॉग को वाहिद रास्ता करार दिया। पीटीआई खवातीन कैदियों की रिहाई और मफरूर खवातीन की सजाएं मुअत्तल करने की तजवीज़। पाक अमरीका फौजी ताउन नई बुलंदियों को छू गया। काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में दोनों मुल्कों की अफवाज की 13वीं इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 मशकों का आगाज। इंसदादे दहशतगर्दी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकें बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगी। शहरी जंगी माहौल में निशानाबाजी की महारत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरबराह पाक फजाइया का दौरा इराक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की इराक़ी फजाइया के सरबराह से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन को फरोग देने पर बातचीत। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में तुर्की भी शामिल होने को तैयार। खित्ते में नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की तश्कील के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। मुआहदे से मशरिक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। ब्लूमबर्ग का तजिया, नए सिक्योरिटी इत्तेहाद में सऊदी अरब माली ताकत, पाकिस्तान एटमी सलाहियत, बैलिस्टिक मिसाइल और अफरादी कुव्वत, जबकि तुर्की जदीद दिफाई सनत और जंगी तजुर्बा फराहम करेगा। तुर्क दिफाई माहिरीन का दावा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को तुर्की के 5th जनरेशन कॉन फाइटर प्रोग्राम में शामिल करने का भी इम्कान। मुस्लिम दुनिया 100 साल बाद गफलत से बेदार हो रही है। तुर्क वजीर खारजा का इंटरव्यू। ईरान की सूरत हाल में इसराइली किरदार की मुखालिफत। मोसाद की साजिश नाकाम बनाने में ईरान को मदद की पेशकश कर दी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाज का दायरा 100 से जायद शहरों तक फैल गया। जाहिदान, शिराज, मशहद, कुर्ज समेत दीगर शहरों में जलाओ घेराव। सिक्योरिटी एहलकारों मुजाहिरीन में झड़पें। अमवात की तादाद 217 तक पहुंच गई। अमरीकी जरीदे टाइम्स का दावा, मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक, कौमी यादगारों और मसाजिद को जला दिया। कई शहरों में हुकूमत के हामी सड़कों पर निकल मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद, गैर मुल्की परवाजें मनसूख। इराकी मलेशिया हश्दुल अशाबी का एहतजाज को चलने के लिए ईरानी हुकूमत की मदद के लिए अफरादी कुव्वत फराहम करने का ऐलान। बाज़ अनासिर ट्रंप की खुशनुदी के लिए अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तकरीबकारों के सामने ना झुकने का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने हंगामों को इसराइली साजिश का नतीजा करार दे दिया। अमरीका को ईरान के दाखिली मामलात में रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत। This is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. And I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. ईरानी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार, लेकिन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर ईरानी हुकूमत से सख्ती के साथ निपटेंगे। ईरान में फौज नहीं उतारेंगे, लेकिन बुरी तरह निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को 2 टोक धमकी। ईरान में भी जारी मुजाहिरों को शानदार अमल करार दे दिया। पाकिस्तान ने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को भी गैर ज़रूरी नक्ल हरकत से गुरेज की एडवाइजरी जारी। शहरियों को सिफारत खाने और कौंसल खानों से राब्ते में रहने का पैगाम। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बना दिए। शहरियों के लिए अहलकारों के फ़ोन नंबर भी जारी। किसी बहरान की सूरत में राब्तों का पैगाम।
ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान पर निगाहें। ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा रवैया न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि खत्ते में बहरानों को जन्म देगा। वाशिंगटन को ऐसे इलाकाई शराकतदारों से फायदा उठाए जिनका इस्तेहकाम में हकीकी मुफाद हो। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ कर लिया। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो रूस या चीन काबिज हो जाएंगे। नहीं चाहता कि अमेरिका या रूस अमेरिका के पड़ोसी बने। सदर ट्रंप ने यूरोपीय मुल्क पर कब्जे का प्लान वाज़ेह कर दिया। ग्रीनलैंड वालों को अच्छा लगे या बुरा, पहले प्यार से डील की कोशिश करेंगे, वो ना माने तो सख्ती पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ने ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि वो ना होते तो आज नेटो का वजूद खत्म हो चुका होता। रूस और चीन को वेनेजुएला का तेल खरीदने की पेशकश। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। I settled 8 wars, some just getting ready to start, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. अमरीका में डूम्सडे तैयारी की परवाज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। एटमी हमले से महफूज डूम्सडे सर्द जंग के जमाने में अमरीकी सदर के लिए तैयार किया गया। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लैस तैयारा लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते देखा गया। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ते बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक फैसला सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। अवामी सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसी के हक में राय दी। कराची में मौसम सरमा अपने भरपूर जोबन पर आ गया। 7 डिग्री सेंटीग्रेड का हरारत के साथ ठंडी हवाओं ने शहरियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। आइंदा मजीद चंद रोज मौसम बदस्तूर सर्द रहने का इम्कान। लाहौर में सूबाई असम्बली के हल्का 167 पर लीगी उम्मीदवार मलिक शफी बिला मुकाबला कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला मरियम नवाज की आवाम को मुबारकबाद। मलिक शफी की कामयाबी आवामी खिदमत का समर करार। आवाम की खिदमत का सफर तेज तर करने का अज़्म। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे के बेशतर शहरों में की खिलाफ फंक्शनल करने की तैयारियां। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मुयसर होगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरीम नवाज के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक हीट लैब में आलमी SOP के मुताबिक अमराज़ क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। मेयर मुर्तज़ा वहाब का बरसों से टूटी फूटी जहांगीर रोड की तामीर का आगाज पीर से शुरू करने का ऐलान। मंगल से नाथा खान से पहलवान गोड तक नए रास्ते पर भी काम शुरू करने का वादा। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू को चेयरमैन SECP तैनात कर दिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये फीमन मुकर्रर। गंदम खरीदारी प्राइवेट सेक्टर से शफाफ निज़ाम के तहत की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की मामले खुसूसी सलमा बट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद तस्लीम करने पर OIC का गैर मामूली इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और काउंसिल जनरल मुस्तफ़ा रब्बानी ने इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार और OIC रुकन ममालिक के अपने हम मनसबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। हिंदुत्वा नजरिए के ज़ेरे असर खित्ते का अमन दाव पर लगाने वाले भारत का शिराजा बिखरने लगा। मणिपुर भी भारत के हाथ से निकलने लगा। रियासत में इंतहा पसंद हिंदुओं के ईसाइयों पर हमलों 3 बरस बाद भी खाना जंगी की कैफियत बरकरार। भारत के खिलाफ नफरत इंतहाई हद को छू गई। दिल्ली सरकार से दूरियां बढ़ने लगी। बरतानवी अखबार दी इकोनॉमिस्ट ने भारतीय रियासत की कमजोर होती बुनियादों का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज जारी। प्लैकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन का बर्तन बजाकर एहतजाज। आइस के खिलाफ नारे।
انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے عثمان خواجہ کی بگ بیش لیگ میں شاندار انٹری، پہلے ہی میچ میں 30 گیندوں پر 50 جڑ دی۔ عثمان خواجہ پاکستان سپر لیگ میں بھی ایکشن میں نظر آ سکتے ہیں۔